and the respected member of House. Warming you all for today's Parliament debate. Today's topic for discussion is education, which is the foundation of our nation and enlightenment society. So first, I want to invite our Honorable Prime Minister to start the motion. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity for speaking. So, good morning to one and all present here. I stand before you as the Prime Minister of India to defend my education initiative which my government has done and to respond to those who criticize our work. The critics initiatively forget the state of education before 2014. Our system is crisis, underfunded and forgotten. Let me present my facts. First, from crisis to transformation. Before 2014, India had one of the poorest education systems in the world. The literacy rate was stagnant, infrastructure was crumbling, and children in rural areas had no access to quality education. After 2014, we have transformed from a forgotten sector into a national priority. We implemented comprehensive reforms through the National Education Policy 2020 after 3 decades. This was a historic milestone that no one previous government achieved. Infrastructure revolution, doubling facilities. The statistics speaks for themselves. Electricity in schools increased from 53% in 2014. In 2014, it was 53% and now it is 91.8% in 2024. Computers rose from 24.1% to 57.2%. Internet connectivity jumped from 7.3% to 53.9%. Drinking water improved from 83.2% to 98.3%. Functional toilets enhanced from basic standards to 94.7% with hand washing facilities. Compare these to the previous decade. We doubled the pace of infrastructure development. Thank you. I now invite the opposition leader to speak. Thank you, Honorable Speaker. So, a very good morning to all of you. Like our respected Prime Minister says, they are doing most of the things for the education system. So, the report of UGC 2025. In your government, lots of things has happened. I think you don't know very properly what you are doing, and you are talking about since 2014. Okay, so SC exam paper leak. There was happened in 2017 to 2018. NEET J paper leak happened in 2018 to 2019, and there were so many things. और मैं आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी सरकार में इतने घोटाले किए गए हैं कि आपके पास उसकी सही जानकारी ही नहीं है। 2024 में नीट पेपर लीक के द्वारा आपने ये पहले आपकी न्यूज़ आई क्या नीट पेपर लीक हुआ है, और 8 जून 2024 को आप ही की सरकार ने मना कर दिया। कुल 1300 बच्चों ने 2024 में अपनी एग्जाम दी थी एजुकेशन के बर्डन के ऊपर, और आपने 2025 और 23 की रिपोर्ट छुपा रखी। मैं आपकी सरकार से साफ शब्दों में पूछना चाहूँगा, यदि आप ये कह रहे हैं कि आपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन बना दिया, तो मालदीव जैसे देशों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है, पर उसका एजुकेशन हमारे देश से बहुत बढ़िया है। और अगर आप एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ज्ञान सिर्फ ज्ञान होता है। अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे केवल मजाक मस्ती चल रही है। माननीय सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में ये। I invite Honorable Home Minister to speak. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यहाँ आपके सामने यह बताने जा रहा हूँ कि 2004 से पहले सरकारी स्कूल में क्या क्या हुआ। 2009 के आंकड़े से यह पता
I call opposition members to speak. माननीय स्पीकर महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। अच्छा, मैं माननीय होम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा, अगर आप बोले हम सरकारी स्कूलों को इतना ध्यान नहीं दिए, तो ये रिपोर्ट क्या आई है कि कांग्रेस ने 1990 से 2014 में गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन और इन्वायरमेंट चैंपियन इंप्लीमेंट किया। स्कॉलरशिप और हॉस्टल प्रोवाइड हुई, जेंडर गैप स्कॉलरशिप इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस हुआ, सोशल एम्पावरमेंट और अवेयरनेस इंक्रीज हुई, और हमने गवर्नमेंट रूरल एंड एरिया में गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सपेंड हुआ एट 1950 से 2010 तक हुआ। टीचर और कैरिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन हुई और सोशल इक्वालिटी और इंक्लूजन प्रमोट हुआ। लोकल कम्युनिटीज का ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम पे हमारे बढ़ा 2050 से लेकर 2014 तक। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी? Honorable Education Minister, please present you. थैंक यू सभापति महोदय, आपने मेरे को अवसर दिया। जैसा कि विपक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया था उनके समय में, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि आपने सरकारी स्कूल बनवाए, लेकिन कई ऐसे सरकारी स्कूल भी थे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और जर्जरा था। शिक्षक की कमी होती थी, एक शिक्षक को कई क्लासें पढ़ाने को पढ़ता था, और शिक्षक के पद हमेशा कई सालों तक खाली रह जाते थे, और शिक्षण की गुणवत्ता भी बहुत खराब थी। आपके समय में पुराने तरीके से पढ़ाया जाता था, बस बुकों तक ही सीमित रहती थी आपकी पढ़ाई, और बिना किसी गतिविधि के पढ़ाया जाता था। विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को बिना एक्सपेरिमेंट के पढ़ाया जाता था उस समय। और मिड डे मील में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, मिड डे मील से बच्चों की तादाद बढ़ी है, लेकिन खाने की गुणवत्ता बहुत खराब रहती थी। बच्चों को अधपका या एक ही प्रकार का खाना मिलता था, जिससे कई बच्चों की तबीयत खराब हुई है। अब क्या मुझे आप इसका स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं? धन्यवाद। माननीय स्पीकर महोदय और हमारे प्रिय एजुकेशन मिनिस्टर जी, मैं आपको ये चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने बोला हमारे द्वारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था, क्या अभी कॉर्नर एसी कमरों में रहकर गांव की हालत नहीं पता चलती? मैं आपसे साफ शब्दों में पूछना चाहूंगा कि क्या आपने सरकारी स्कूलों में जाके देखा है अभी किस तरह की गतिविधि हो रही है? आपने बोला कि एक टीचर को कई बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। आपके एजुकेशन में आज के डेट में सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, आप मिड डे मील की योजना में माना कि आपकी मिड डे मील योजना हमसे बेहतर है, मगर इस समय भारत की जीडीपी भी उस टाइम से बहुत ज्यादा बनी है। और तो और आपने बोला कि हम एजुकेशन सिस्टम में और गतिविधियां नहीं करवाते थे, आपके स्कूल में केवल गतिविधियां हो रही हैं। ज्ञान सरकारी स्कूल में जाके देखिए, ज्ञान नामक कोई चीज नहीं है। आपने क्या दिया? स्मार्ट बोर्ड और आईपैड दिए, उसका इस्तेमाल केवल सरकारी टीचर्स कर रहे हैं। कुछ वर्षों से मैंने ये चीज देखी है, 7 लाख से ज्यादा टीचरों ने रिजाइन किया सरकारी नौकरी। मैं जान सकता हूँ इसकी वजह क्या है। और आपने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया एजुकेशन सही नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको एक बात बता दूं, आपके एजुकेशन सिस्टम से हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा था। आपने आज की डेट में एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप रखा है। आज के टाइम पे आप केवल कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर अपनी जेब भरने पे ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह आपको पता है, आपने कोचिंग संस्थानों के ऊपर कोई नियम नहीं लागू किए, आपने कहीं कोई स्कूल पे प्राइवेट सेक्टर्स पे नियम नहीं लागू किया, आपने हर चीज को छूट दे रखी है। हमारे द्वारा ऐसा नहीं था, हमने हर प्राइवेट सेक्टर हर चीज पे कंट्रोल रखा था, आपने हर चीज को छूट दे रखी है। माननीय स्पीकर महोदय और अपोजिशन, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूँ कि आपने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल नहीं किया और हमारे योजना पे आपने विद्रोह कैसे कर, जबकि आपकी सरकारी योजना भी कुछ सही नहीं है। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, please present you. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity. As the opposition leader said, their education system was very much better than ours. I want to tell you that we have eliminated single teacher schools.
Before 2014, over 1 lakh single teacher school existed, where one teacher taught multiple classes, which devastated learning outcomes. After the 2014, we reduced single teacher schools by 6% and ensured proper staffing in 51.36 lakh schools. We appointed more than 51 lakh new teachers since 2014, with 61% being women teachers who serve as role models for girls' education. Girls' education barriers. Through the Beti Bachao Beti Padhao initiative, girls' gross enrollment ratio (GER) in secondary education increased from 75.5% to 79.4%. It was in 2014 to 2022. This change we have come across. 23% increase in girls' enrollment. In STEM fields, I would like to tell you STEM means science, technology, educational, maths labs. In STEM fields, female representation in higher education surged by 38.4% from 1.57 crore to 2.16 crore. Female teachers now comprise 54.2% of the workforce, up from 46.9% in 2014 to 15. And the opposition leader, I would like to ask to you, you said we have told all the facts wrong. You can tell me what wrong we have said. The numbers are not the correct. We have shown all the real facts and all the real values. I would like to ask to the opposition leader, I want the answer. How can you say we are wrong? We have given the wrong facts. We have told all the real facts. Thank you. Opposition leader, please present your. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जैसा कि आपने बोला, मैंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने शायद नकली नंबर से दिए। आप हमें बताइए क्या है? यूजीसी की रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट के द्वारा नीट पेपर लीक 2024-5 में आपकी सरकार ने इसको मना किया 8 जून 2024 और यूपीएससी पेपर यूपी पुलिस पेपर लीक 2024 आरओ बिहार पेपर लीक बीपीएससी और माननीय प्रधानमंत्री एसएससी पेपर लीक 2027-2018 जेई नीट पेपर लीक 2018-2019 नीट पेपर लीक 2020 टीचर्स वर्कर प्रॉब्लम 2015-2023 नीट पेपर लीक 2024-2023 और मैं कितने ही घोटाले आपके सामने रखूं और यदि आपको जानना ही है और 2022 की रिपोर्ट कहती है कि आपके सरकार के द्वारा शिक्षा नीति बनाई गई है तो 1300 बच्चों ने आत्महत्या की और ये संख्या हर साल बढ़ रही है पर आपकी सरकार ने इसका कोई एग्जैक्ट उत्तर नहीं दिया हमें कि कितने छात्रों ने आत्महत्या की और दिन पे दिन शिक्षा के घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कुछ सामान्य घोटाले आपके सामने रख रहा हूँ, फर्जी डिग्री, ये शिक्षा नीति, शिक्षकों का बेफालतू बच्चों को धमकाना और ये ना जाने ऐसे कितने ही घोटाले सरकार ने किए हैं। और यदि मैं आपको कुछ और रिपोर्ट दूं तो आप जान सकती हैं 2025 यूपीएससी पेपर ऑफिसर्स का अरेस्ट होना क्या है आपकी सरकार के द्वारा। अगर हम नकली रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप हमें ये बताएं कि आपकी सरकार में जो सरकार ग्रहित कर रहे हैं यूपीएससी पेपर इंचार्ज ने क्यों अरेस्ट किया गया है सिंस 2025। Tell me the correct answer, Honorable Prime Minister and Honorable Opposition Minister, Health Minister. I want to ask that if you are clearing that कि आपके द्वारा सरकार ने मिड डे मील की योजना में बच्चों को सही राशन दिया है तो बच्चे क्यों दिन पे दिन प्रॉब्लम हो रही। केरला 2025 में क्यों 8 बच्चे बेहोश हो गए सरकारी स्कूल के अंदर। मैं आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी और फाइनेंस मिनिस्टर, आप हमें ये बताएं कि आपने देश की कुल जीडीपी का कितना खर्चा किया है एजुकेशन के ऊपर। कि आप लोग केवल अमीर लोगों की जेबें भर रहे हैं, एक गरीब इंसान करे तो करे क्या, वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है ताकि वो सही शिक्षा पाए, पर आपने उसे सिर्फ 2 कदम पार उठाए। केवल एक समय का भोजन किसी का भविष्य डिसाइड नहीं करता, इसमें प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है। और माननीय अपोजिशन के सभी मेंबर्स से मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन आप क्या भूतकाल में जीने वाले सदस्य हैं
अगर आप भूतकाल में रहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाकी देशों की तरह आगे बढ़िए। आंख अंधे करने से देश की तरक्की नहीं होती, माननीय अपोजिशन पार्टी। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। धन्यवाद माननीय स्पीकर जी। मैं अपोजिशन पार्टी को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे बोला कि स्वास्थ्य में हम लोग ने जीडीपी में ग्रोथ नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले इंडिया में सिर्फ 7 एम्स इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन आज 2014 के आगे 2024 में 2025 में यहाँ पर 23 कॉलेज इंस्टीट्यूशन है एम्स में, जो आपके लगभग में 3 गुना है हमारे यहाँ। और आप जैसा बोल रहे हैं कि नीट पेपर में जैसे लीक हुआ था, after leaking the paper we have state action on that investigation by CBI means Central Bureau of Investigation, to arrest the individual including school officials, brokers and students who are involved in that cases. We have to arrest and taking a state action on them. Thank you. पद से विमान सदस्य कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे बोला कि आपकी सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोली है। इंस्टीट्यूशन खोलने से कुछ नहीं होती, बच्चे पढ़ाई करें, अपनी शिक्षा प्राप्त करें, ये जरूरी होती है। 1947 से लेके 2014 तक जितने भी सरकार आए उन्होंने 55 करोड़ तक का लोन सरकार से लिया था, लेकिन अब जब आपकी पार्टी आई है तब उन्होंने कुछ ही साल में 10 साल के अंदर ही कुल 75 करोड़ का लोन लिया है। तो आपने ऐसा क्या किया? आप बता सकते हैं कि इतने सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? गरीबों के दान में या आपकी जेब में? धन्यवाद माननीय सभापति। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने तो सीधे शब्दों में कह दिया कि आप अपनी जेबें भर रहे हैं, पर आप ये बताइए कि आईआईटी के 16 कॉलेजेस थे, हमने 2025 तक 23 कॉलेज किए और 2014 में आईएम जिसे एम्स बोला जाता है, आईएम्स बोला जाता है, उसमें 13 कॉलेज थे और 21 कॉलेज हमने बनवाए 2025 तक। एम्स में 7 कॉलेज थे, वहां से हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 3 गुना तक किया, जो 23 हुआ। और यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई 2014 में 760 यूनिवर्सिटी थी। आप लोगों ने क्या किया था 760 यूनिवर्सिटी को? 2025 तक हम लोगों ने 1334 यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जो 51,384 थे, पर हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 1,18,137 किया। और जैसा आप बोल रहे हैं कि बजट में कोई वो नहीं है, हमारे बजट बढ़े हैं कितने? 55 करोड़ से लेके 1,28,650 करोड़ तक हमारे बजट में बढ़ोतरी हुई है। और आप बोल रहे हैं आईआईटी जेईई नीट के पेपर लीक्स, जब आपकी सत्ता थी सरकार 1997 में, तब भी आईआईटी जेईई पेपर लीक्स हुए थे और उसमें मेरे पास साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आईआईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं की पेपर लीक्स होने के कारण उसे रद्द करना पड़ा था। और 2013 में मेडिकल और डेंटल कॉलेज में घोटाला हुआ, तब वो सामने आता नहीं, आपकी सरकार उसे दबाए रखा था, पर सामने कब आया? जब खुद वहां के छात्राओं ने उठकर ये बताया कि हमारे सभी से मिलके वो लोगों ने 1 करोड़ तक के रुपए घूस लिए हैं। और राजस्थान जैसे बड़े कोचिंग सेंटर्स में बजट पे धांधली हुई है। जैसा कि 2014 से पहले भारत में 2003 से लेकर 2012 तक के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, लगभग 1,03,961 बच्चों ने आत्महत्या की। क्या आपका इसके पास कोई जवाब है? छात्र अपनी जान दे बैठे। 2013 में अकेले 8,423 छात्रों ने अपनी जान दी। कोटा जैसे शहरों में जो 2014 से पहले ही कोचिंग के बड़े केंद्र बन चुके थे, छात्रों ने तनाव में आत्महत्या की है। ऐसे आत्महत्या सुसाइड के केस बहुत आगे आ रहे हैं। आपने बोला जेईई नीट के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने जैसे ही जेईई नीट के पेपर लीक हुए, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम जिसे बोला जाता है। पेपर के लिए टेम्पर प्रूफ डिजिटल लॉकिंग का उपयोग किया हमने, ताकि पेपर लीक ना हो सके। परीक्षा केंद्रों पर एआई से निगरानियां होती हैं और अगर कोई इस काम में पकड़ा गया तो उसे 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। उसके बाद अगर परीक्षा का जो संस्थान है वो भी कॉलेज या स्कूल वो भी उनसे मिला हुआ है तो उसका पूरा डिग्री रद्द किया जाएगा और परीक्षा को
केंद्र करने में जो भी पैसा लगा उसे उससे ही लिया जाएगा। तो क्या आपके पास ये सवाल है, इस सवाल का जवाब है? जी हाँ, धन्यवाद। है। मान्य सदस्य आपको मौका मिलेगा पहले बोलने का। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। जैसा कि रूलिंग पार्टी ने बोला, हम आईआईटीज को एक्सपेंड नहीं करवाएं, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आईआईटी इस्टेब्लिश हुई 1951 से 2000 तक। कांग्रेस ने 1951 से 2000 के दौरान इंडिया में आईआईटी इस्टेब्लिश की, जिससे टेक्निकल एजुकेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ, जो कि आपने बोला वो नहीं हुआ। और आपके द्वारा जो आईआईटी बनाई गई वो आईआईटी अभी के टाइम में हमारे जो पहले की आईआईटी थी वो ज़्यादा स्ट्रांग है आपके आईआईटी से। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर आपके आईआईटी बनाए गए से बेस्ट आईआईटी है। आप जाके इसके बारे में गूगल में रिसर्च कर सकते हैं। टॉप आईआईटीज ऑन द इंडिया, दे वांट टू शो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। मैं ये आप जाके इसे रिसर्च करें, आप कहीं से भी रिसर्च करें, चाहे एआई से, चाहे कहीं से भी। और अभी मैं बताता हूँ आपने, और एम्स की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1956 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि आपके दौरान आपने कितने एम्स अभी तक बनाए, और आपके एम्स में अभी तक कितने। योर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, प्लीज काइंडली कंटिन्यू। अब आप बोलिए। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। माननीय रूलिंग पार्टी, आपने जैसा बोला कि हमारी पार्टी ने केवल विद्रोह किया, केवल पैसे खाए, तो मैं आपको बता दूं पिछले 10 और 15 सालों में आपकी पार्टी जब से सत्ता में है कुल 13,000 करोड़ शिक्षा में घोटाले हुए हैं। इसका उत्तर दीजिए। और आपको जानना था ना कि हमने रूलिंग पार्टी ने क्या, हमने आप जो शिक्षा नीति पे इतना जोर दे रहे हो ना, उसकी जड़ों को हमने मजबूत किया है। हमने आईआईटी, एम्स जैसे कॉलेजेस का स्थापना किया इंडिया में और उसकी जड़ों को मजबूत किया। अरे आप क्या हमें सिखाओगे कि हमने क्या किया अपनी रूलिंग सरकार में? मैं आपसे सीधी बात में पूछना चाहूंगा कि अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि आपने केवल जड़ों के ऊपर पत्तों का काम किया है। जड़ों को मजबूत करने वाली पार्टी हम है, और आपकी माननीय रूलिंग पार्टी और उनके सभी सभासद, मैं ये स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आपके द्वारा की केवल घोटाले हो रहे हैं। अगर हमारी पार्टी ने कुछ भी घोटाले किए हैं तो उसके रिपोर्ट हैं हमारे पास, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं। मगर आपकी पार्टी के रिपोर्ट छुपाए गए हैं। 1300 बच्चों की मौत के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है एग्जाम। और अगर आज आप गूगल करो ना, गूगल पे आता है कि भारत में हर दिन एजुकेशन के ऊपर नए घोटाले होते रहते हैं, इसलिए कोई फाइनल नंबर नहीं है। नंबर दीजिए हमें, जनता जानना चाहती है कि क्या कौन कौन से घोटाले हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? Thank you, Speaker, for giving. माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बातों को कृपया करें। Thank you, Speaker, for giving me the opportunity. As they said, they have rooted the education system. I would like to tell you all that yes, and we have created infrastructure in 19.8% of schools for electricity, 98.3% for drinking water, 94.7% for toilet. Previous government didn't do this much investment in decades. I also want to tell that numbers don't lie. So which indicator went down? Literacy, number of enrollment or number of infrastructure. From one teacher, one room to smart labs and digital learning, that's transformation we have did. We didn't just build skills, we built futures. 51 lakhs teachers appointed, that not policy, that's commitment. 91.8% electricity, 98.3% water, 94.7% toilets, that's infrastructure revolution. 23% more girls STEM, that's India's real demographic dividend. Tier 2 cities now have IITs and AIMS excellence is no longer elitist. Our education system now currently is going in the top 3 countries in the world. PMKYV, you must know about PMKVYV, trained 1.63% crore, creating jobs ready, not just degree ready. Previous government promises reform for 34 years. We delivered in 6 years. I also want to tell you all that when I took office in 2014, India's education system was the shambles. Teachers were absent. Schools had no infrastructure.
Girls had no access, premier institutions were concentrated in the two cities, and youth had no skills. We have achieved in 11 years a lot, and the transformation that we have did is great. Thank you, Speaker. Honorable members, today's debate topic of education was highlighted. So I thank you for all the ministers for their thoughtful and valuable conversation. So with this, our house is adjourned.